Be honest with me. क्या आप 2018 को भूल पा रहे हैं? Hi, welcome back to Mishi Unfiltered. Today we are taking the trip down to the memory lane and revisiting the iconic beef between MUA Bantai versus Raftar. It was the clash of two worlds. One who was an underground sensation building a name for himself, and the other one who had already established a heavyweight for himself in the industry. This is without a doubt the most requested concept on the channel. Back then, I was young and I didn't know much about the Indian hip hop. I knew it was a global thing rooted in the foreign cultures, but I didn't know how it was shaping here in India. And I wasn't really paying attention as well. But this beef, it changed everything. It got the attention of the Aam Janta. People who had never even heard of the Desi hip hop were now picking up sides. At that time, I only really knew Raftar. I didn't know much about Bantai, and that's because Raftar was a bigger name, he had more Bollywood visibility, mainstream hits, and he was more recognized. So naturally, due to familiarity, I was prone to take sides with Raftar. And I had also seen that infamous interview of Raftar with Raj Jones, and I was quick to judge anyway based on that. Now, before we jump into the video, here's a quick disclaimer. I know a lot of you guys are going to come at me in the comments for not taking side or defending your favorite artist, but let's get this straight. Hip hop beefs are about perspective. There's no universal truth of who is right or wrong. What you see as disrespect, someone else sees it as self-expression. So let's keep the comment section healthy and not hateful. Also, it's been a long time since I have listened to any of the tracks of the 2018 beef. So who knows, I might discover something new this time. Let's get into the video. So like I mentioned that I've already seen the interview of Raftar with Raj Jones. I want to quickly play the part where I think it all went wrong. पर फैक्ट तो नहीं बदलता ना. फैक्ट तो यही कहता है ना कि एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलने में कितना टाइम लगता है. मुश्किल होता है यार, सबको नहीं मिलता. इक्के ने वीडियो में बोला कि 2013 में मेरे पास जी की वो आई थी, पर जी म्यूजिक चालू 2014 फरवरी 21 तारीख को हुआ है. उसकी विकीपीडिया पे पढ़ लो तुम. 21 फेब 2014 को स्टार्ट हुआ है, तो मतलब शायद लेट मिली होगी. मैं ये भी नहीं डाउट करता कि उसको नहीं मिली होगी और वो टीम की वजह से नहीं कर पाया. ठीक है, फैक्ट है. पर उसके बाद अभी तक क्यों टाइम लगा? वो इक्के की गलती नहीं है, वो लेबल्स की गलती है कि लेबल्स समझ नहीं पा रही कि ये स्टाइल ऑफ म्यूजिक कितना कमा सकता है. देखो डिवाइन को समझा सोनी ने. डिवाइन कितना अच्छा कर रहा है. So basically here he's talking about his friends, and all he is trying to say is how the label is not understanding the kind of style or the music that the artist is bringing along, and which is why the artist is not able to get any contracts. स्टाइल ऑफ म्यूजिक कितना कमा सकता है. देखो डिवाइन को समझा सोनी ने. डिवाइन कितना अच्छा कर रहा है. अपनी उसने एक मार्केट खड़ी करी है, सब कुछ है. वो समझ क्यों नहीं आई है? क्योंकि मोनोपोली हो गई. सबको गाना चाहिए हनी भाई जैसा, अब बादशाह भाई जैसा. कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को कि बादशाह भाई ने अपनी मार्केट नहीं खड़ी करी है. 100% करी है यार. मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं फैक्ट्स देखता हूँ, मैं जेन्युइनली अपनी पोजीशन देखता हूँ यार. मैं वो दूसरा दोस्त हूँ जो आपके हक के लिए लड़ेगा, और मैं हमेशा बोला है, मैंने सबके लिए बोला है. उसके लिए चाहे मैं गलत लगूँ. So for anyone who's new to the DHH scene and who's watching this video for the first time, all of the names that he just took, Ikka, Golu, Raftar himself, and Badshah and Honey Singh, all of them were in Mafia Mundi. दोस्तों जो आपके हक के लिए लड़ेगा, और मैं हमेशा बोला है, मैंने सबके लिए बोला है. उसके लिए चाहे मैं गलत लगूं, मेरे को मैटर नहीं करता यार. मेरे अपने खुश हैं. मैंने उसमें बोला कि मैं लड़के साइन कर पा रहा हूँ, पर लड़के साइन कर पा रहा हूँ तो शायद इसलिए ही कर पा रहा हूँ ना क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है. देख मैं पैसा वो उड़ा भी सकता हूँ, बहुत सारी गाड़ियाँ लेके, ये सब करके वो करके. मेरे को क्या पड़ी है कि मैं किसी पे इन्वेस्ट करूँ? और हमारे सीन का हाल तू समझता है, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं. बी ऑनेस्ट. The iconic line that all of you must have seen because it went so viral, and this is where all of the beef started from. अंडरग्राउंड बहुत एमीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ. वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शोज के मिलेंगे. डिवाइन कर रहा है बिकॉज उस पर मूवी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, पर उसकी हार्ड वर्क की वजह से. वो पोजीशन क्यों नहीं है गोलू की? And this is where MUA went bitter, listening to how he said that Divine is earning for himself and he's made a good name and he's got a movie on himself. And this is all where MUA just lost it and he had to bring in the beef. But
I feel like he was technically just trying to put a point that his friends are not able to earn, or they're not making a good living for themselves because of the labels and the music industries. I don't think he meant anything wrong for MUA. Well, if you actually listen to the full interview of Raftaar with Raj Jones, it feels like Raftaar was talking about his friends and how the label and the industry is being unfair to them. He also mentioned how the artists are struggling and how the industry is still not ready to accept the different sounds that many of the artists are bringing in. He also spoke about Divine and how he's become big, but when he spoke about MUA, it came out differently. I really think that he meant well for MUA, but the choice of words weren't the best, and that's where I think things got misunderstood. And I also feel like there was some personal tension going on between the two, and this interview was just the right time when the thing spilled over. And to me, it feels like MUA was already frustrated, and this was just the tipping point. This was when the water level rose above his head. With that said, let's go on to the first song of the beef, समझ में आया क्या? रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद मी। अंडरग्राउंड एमीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमीवे कमाया क्या। मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया, वो सारा पैसा बनता है तूने लगाया क्या। मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या, मांगने को पैसा में घर तेरे आया क्या। हमें आया था तोहफा साथ लाया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या। एमीवे कमाया क्या, मैंने जनता कमाया छोटे, समझ में आया क्या। समझ में आया क्या, समझ में। Now that I listen to it again, it feels more like a conversation between him and Raftaar rather than a song. समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। 101% on the biggest. My nigga, chill. विवियन डिवाइन ने भी बोला था पार्टी में, एमीवे पैसा कमाया क्या। 101% तू खुद को बड़ा बोले। मजाक है क्या। लेबल से आने के बाद तेरा काम बना, लेकिन मेरा नाम और बंटाई से बना क्या। बिगेस्ट है तो तेरे सामने ही, बहुत सारे वोट्स के साथ पीपल चॉइस अवार्ड उठाया क्या। साइन होना बुरा नहीं, लेकिन मेरे होते हुए खुद को बड़ा बोलना नहीं। बोलने का है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बन के दिखाने का। सोना चढ़ाने का, गहना लगाने का, हर महीना मेरे जैसा बंटाई वीडियो बनाने का, कुल्फी रैपरों को कुल्फा कराने का। समझ में आया क्या, क्या बोलने का बनता है। और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है? MC Stan। MC Stan। सुन, ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा। मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा मम्मा का जा दूध पी। एक काम कर, आके मेरा मुंह पी बस नाके पे, रेल फाटे पे। और MC Stan तू मेरे छाटे पे। तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं, उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे। समझ में आया क्या, आया क्या। एलियन के शक्ल के आला जादू। And this is the iconic tag that stuck with MC Stan forever. And this is where people went crazy, that line, mamda mamda chappal ka chamda. एलियन के शक्ल के आला जादू। अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे, तू काहे को टेंशन ले रहा तेरे सर पे। 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ, तू जहाँ पे है उससे भी वहाँ पे हूँ। आके देख जरा कैसे मैं जीता हूँ, बिना शोज किए महंगी चीजें खाता पीता हूँ, जीता हूँ। दिखावा नहीं करता, चुप रहता हूँ मैं, दावा नहीं करता तो फायदा उठा रही पब्लिक। बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ, तकलीफ तो होनी है। बंटाई हटेला है, जो भी एड़े चाले करता खुले आम पेला है। खेला है खेल मैंने खुद के तरीके से, सबके फ्लो एक ही तरीके के। सबको पता है कौन खुद के बलबूते पे नंगे पैर निकला था, लेकिन आज जूते पे। जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ मेरे खुद के कमाई का। गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्यों? क्योंकि अलग वजब तेरे भाई का। मुझसे कोई नीचे नहीं, मुझसे कोई ऊपर नहीं। मुंबई की बोली में रैप करना तुझसे नहीं, मुझसे और नेजी से सीखे ले, फिर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले। समझ में आया क्या,
ये लोग ने पैसा कमा लिया, सब कुछ बना लिया, 4-5 साल के लिए मिलेंगी तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे। इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो, इन्हें बोलो विजय माल्या। समझ में आया क्या? ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर। मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स, और मैं खुद ही एम्पायर। बैठ ला, बॉल डाल। मानेंगे? ये डिस गाना नहीं है, जिसको लग रहा है ये डिस गाना है, ये डिस गाना नहीं है, ये सच्चाई गाना है। सच्चाई बोले ले अपन। बहुत दिन शांत थे, लेकिन अभी और शांत नहीं रहूंगा। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, और कोई है क्या यहाँ पे? है तो बताओ, करके दिखाओ। मालूम है ना। पीस। समझ में आया क्या? Well, this was Emiway's first diss track in the beef, and as we've seen before, his first diss always sets a tone and established his narrative. In this diss track, he went at Raftaar, Divine and MC Stan. You won't find any complex flows, crazy wordplays. Emiway keeps it simple, to the point and direct. Back in 2018, the Indian hip-hop had a lot of new listeners, and people went crazy listening to lines like Mamda, Mamda, Chappal ka chamda, and even in 2025, it's still funny. The Alien ki shakal ki line aimed at MC Stan, it's crazy how it's still stuck with him even today. And this is the reason why I can still go back to these tracks and listen to it even today and still enjoy it. So moving on to the next song. Yeah. रफ्तार। I'm sad ये करना पड़ा यार। Shake chili, Shake chili, shake chili। सुन तू भाई नहीं, यानी कि तू बनता ही नहीं है, तू बनता ही छोड़, तू तो बंदा ही नहीं है। चुप रहना, मेरा बनता ही नहीं, मुझे सब दिखता है, मेरी बंदा ही नहीं है। तेरा भाई बाबू भंडा ही नहीं है, वो सच बोलता है, सच जमता ही नहीं है। तेरे मेरे जैसे बहुत करे काम, पर सीन में कोई खास ज्यादा धंधा ही नहीं। सच्चाई यही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, सच्चाई यही है लोगों में नहीं यूनिटी। ईगो है पहाड़ पे। This is basically what Raftaar was even trying to say in his Raj Jones interview, that the artists are not getting the right opportunity because of the labels, because the label is not able to understand the kind of music that the artist is bringing in. So he was basically trying to say that it's the label's fault that the artist is not getting the right opportunity that they deserve. सच्चाई यही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं, सच्चाई यही है लोगों में नहीं यूनिटी। ईगो है पहाड़ पे, ये खुद चने के झाड़ पे, ये खुद की मुड़ के चाटे बोले दुनिया मुझको पूछती। मैं तेरा भाई जो तू नहीं मेरा भाई तो तबाही है तबाही। तू होगा हाई मेरे भाई, जो तूने सुन के इंटरव्यू अकल नहीं चलाई। कड़कपन मत बन तू ढोकला, अकलमंद नहीं छोटे तू तो निकला दोगला। लड़कपन में भी निकला नॉट हार्ड, सड़क बंद आगे बंद ना का तेरे रोड का। याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं क्या, याद दिलाऊं तू मिलने को आया था, मैंने बुलाया था, साथ बिठाया था, खाना खिलाया था, वापस ना भेजा होटल में सुलाया, पेंड्रा के स्टूडियो में बुकिंग कराया। बबल हे स्टूडियोज नाम याद में आया क्या, स्टूडियो वाला किराया तुझसे भराया क्या, अपने से पीछे बताया क्या, अपने से नीचे दिखाया क्या। I feel like a good beef is when an artist reveals things that the audience doesn't already know. And in this case, Raftaar was revealing things that we as an audience didn't know this back then in 2018. So yeah, I feel like this part is a good part from the track. से भराया क्या, अपने से पीछे बताया क्या, अपने से नीचे दिखाया क्या, अपने सीने से लगाया था, कितनी खुशी से मैं गाना कराया था। तब तेरा तेवर अलग था, तू लड़का कड़क था, मुझे आया तुझ पे भी प्यार गजब का, तो लिखा तेरा आधा वर्ष सड़क का। आजा मुकदमा बिठाता हूँ, सदमा लगा है तो बाद में आता हूँ, तुझको तो याद ही होगा, जो याद नहीं है तो याद दिलाता हूँ। वायरल ना होता से लेबल का रोक नहीं, ये लाइनों का राज तू कभी नहीं खोलेगा, माँ की कसम मुझे अब तेरी बारी, तू सच्चा मुसलमान है, झूठ नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा।
ये लड़का झूठ नहीं बोलेगा, ये लड़का कुछ भी नहीं बोलेगा, थोड़ा भी नहीं, अब ये म्यूट ही होलेगा। दुख है कि मुझको बताना पड़ा, जताना नहीं था जताना पड़ा। मेरे घर पे तू डिश खा के मुझ पे ही डिस लाया, मुझको भी लंगर लगाना पड़ा। नाचे तू फ्लो में ए, मेरे दिल्ली के शो पे ए, मैंने सबसे मिलाया था ए, खुद पीछे का होके। मुंबई में शो था, तू मेरा ब्रो था, प्रो ही ना होता तो शो पे ना होता। मैंने तुझे सिर्फ इज्जत दिलाई है, भाई को दुख है कि इज्जत पे आई है। इज्जत कमा के ना इज्जत गवा, शो पे जो थे वो है मेरे गवाह। उंगली दबा छोटे मुट्ठी बना, गुस्सा तू कर पर ना मुंह को सड़ा। बचपना बचपना बचकानी बातें बंद कर, जरा सच बता। पैसे की बात ही नहीं थी, मैंने बोला डिवाइन बड़ा है, तू तब सड़ा। आज का सच यही है कि हाल फिलहाल उसकी इज्जत बड़ी है। तू पिक्चर में आ रहा है छोटे नेजी और उस पे वो पिक्चर बनी है। चलती है गली 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 गैंग, तभी तो एमी की जली 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 गैंग। हल्की है बातें हैवी बस स्लैंग, कल का है तू हल्का है तेरा प्लान। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, याद में आया क्या, मैं तेरे बाद में आया क्या। चिल्लाने से बनते गाने क्या, चिल्लाने से बनते शाने क्या, ये चाले करके And this line is still famous between the Raftaar fans. चिल्लाने से बनते गाने क्या, चिल्लाने से बनते शाने क्या, ये चाले करके पब्लिक को बना रहे, ये पब्लिक में अंधे या काने क्या। जनता की क्षमता है ममता भी देगी, और जमता नहीं है तो घंटा ही देगी। बातों का मतलब बदल के बताने से सोचे कि जल्दी से जनता बढ़ेगी। भाई से सीधा तू छोटे पे ना, उम्र में मुझसे ये छोटे हैं। सीखा मैंने तुझको अपना बना के कि अपने ही कमीने होते हैं, कमीने होते हैं, अपने ही कमीने होते हैं। समझ में आ गया मुझको, समझ में आ गया। ए हाँ, चल कुछ बात और ध्यान से सुनना। तू मुझे छोटा बोला क्योंकि ईगो तेरी हर्ट है, मैं तुझे छोटा बोला क्योंकि 8 साल का फर्क है। छोटे तू शाहरुख नहीं, शाहरुख बस एक है, और तू शाहरुख शेख नहीं, शाहरुख स्नेक है। सच्चाई है ये गाना नहीं डिस। समझ में आया क्या? Actually, Raftaar came across as a big brother to Emiway, like he was trying to justify his words and clear out the air. He was witty, he had a clever wordplay, and his flow was definitely smooth. Raftaar also dropped some solid lines throughout the track, and I feel like one of the funniest parts of the track was when he mimicked Emiway's flow style to mock him. That was pretty clever and entertaining. But I think Raftaar made a mistake when he started highlighting all of the things that he had done for Emiway, like wo jata raha tha. And also the luxury cars, the helicopters, and the luxury bags. It didn't quite help him. It probably made people turn against him. And let's be honest, people always like to support the underdogs. And this is why I feel more and more people were supporting Emiway. Also, Raftaar did not come in the track with hard-hitting insults like Emiway did. However, purely as a listener, I would listen to Sheikh Chilli over Samajh Mein Aaya Kya because it's more polished and replay worthy. With that, we move on to the next song, Raftaar. शेख चिली। अबे ये बचकाने, ये सब ना मैं चौथी में करता था। रफ्तार मरवा के मानेगा, रफ्तार मरवा के मानेगा। शेख चिली सच्चा मुसलमान है तो झूठ नहीं बोलेगा। जात पे कहा जा रहा बाबा, अपन इंसान है। सुना बे सच्चा मुसलमान नहीं सच्चा इंसान हूँ, तेरे कोट सोच पे देने आएला ज्ञान हूँ। वीडियो में हेलीकॉप्टर छोटे में विमान हूँ, चक्कर आ जाएगा कि मामला पानू। खाना खिलाया ना, स्टूडियो किराया भरा था ना, मुझे तूने शो पे गवाया ना, पैसा दे। मैं फोकड़ में आया था, छोटे सोच वाले तेरा मुंह काला, तू बंटाई से भिड़ गया समझा क्या लाला। तू पैसे कमाने के पीछे था पागल, हिप हॉप को छोटे हमने संभाला। तू टूटेला ताला, तू खुलेला नाला, झूठी तेरी बोली तेरा काम बारी जाला। बंटाई हटेला है समझा क्या लाला, तू नकली सवेरा में सच्चा उजाला। यहाँ तेरा काम ही नहीं है, अंडरग्राउंड म्यूजिक में तेरा नाम ही नहीं है। तू फोकट दिखावा करता है छोटे, हिप हॉप में तेरे को सलाम ही नहीं है। खुद हाफिज है, मिल वापिस है ओ मेरे लाल। समझ नहीं आया तो समझ में आएगा, आगे क्या गाएगा और क्या बताएगा। मेरे ही फ्लो में तू मेरे को समझाएगा। सड़क गाना छोटे पहले से बना था, तूने मुझे पूछा साथ में बनाएगा क्या। 4 लाइन हाँ तूने लिखा था, पर पूरा गाना छोटे मैंने बनाया क्या। फोन पे बात किया था, रिजल्ट कराएगा क्या। So similar to Sheikh Chilli, how Raftaar was giving revelations about his perspective,
we can see Emiway is also giving his perspective and his side of the story. तूने लिखा था पर पूरा गाना छोटे मैंने बनाया क्या फोन पे बात किया था रिचार्ज कराएगा क्या पैसा पैसा पैसे को खाएगा क्या पैसे को खाएगा कितना खाता भाई तू एक पेटी दो पेटी कितनी पेटी खाता तू खिलाओ इसको डिवाइन और नीजी पे पिक्चर बनी है लेकिन तेरी पिक्चर मैं ही बनाऊंगा तू तो गली बॉय में नहीं है छोटे पिक्चर से पहले मैं सबको बताऊंगा कौन असली कौन नकली कौन चिकी कौन चकली लाभ गेम है भाई ये मजाक नहीं है तेरे बात में कोई बात नहीं है छोटे तेरे बात में आवाज नहीं है क्या मेरे जैसे पागल रैपर का इलाज नहीं है आज नहीं है कल है मेरा सफल है मेरा मुझे खुद पे भरोसा अकल है मेरा शेख चिल्ली गाने में तू तो नकल है मेरा हाँ पकड़ ले मेरा फ्लो रफ्तार देखो हुआ स्लो गिरफ्तार हुआ मेरा ब्रो चले बचकाने मत रो मुझसे पंगा लिया सहना पड़ेगा आड़ी लेगा मुझसे महंगा पड़ेगा रैपिंग के मामले में पागल सा रैपर हूँ ये बता तू मुझसे कब तक सड़ेगा तू जब तक सड़ेगा मैं तब तक लड़ेगा मैं ठक ठक करेगा दिल धक धक करेगा और मेरे खौफ में हर जगह जाके तू मेरे ही बारे में बकबक करेगा तू बकबक करेगा तू बकबक करेगा बकबक करेगा तू बकबक करेगा तू बकबक करेगा बक फिर से आके मैं ठक ठक करेगा चिल्ला के गाने का हर किसका बस का नहीं हाड़ू छूटे तेरे जैसा मस्का नहीं 8 साल बड़ा फिर भी मैं ठसता नहीं हिप हॉप हमारा है तेरे लिए रास्ता नहीं हम लोग का हिप हॉप है बनता है कहाँ से गुजरा तू बीच में पहले था क्या इधर तू गाना वहाँ नाच ना छूटे हैशटैग सड़क से पहले सड़क रिमिक्स रिकॉर्ड हुआ साथ में गाना निकालेगा बोल के मेरे साथ भलते में ये वाला फ्रॉड हुआ साफ दिखता है ये ऊपर से मूली शूट होगा बोल के भोग दिया टुल्ली साइन करना चाहता था मेरे को तू इसलिए फोन करके बुलाया दिल्ली बागड़ के बिल्ली शेख चिल्ली शाना है 1 साल हुआ बता कहाँ पे गाना है जवाब दे लोगों को लोग पूछ रहे हैशटैग सड़क रिमिक्स का है यही असली शॉट है बनता है पब्लिक और तू एक दिन मेरे साथ पार्टी मचाएगा लेकिन पैसा में लाएगा वरना तो अगली बार फिर से गिनाएगा रफ्तार रफ्तार हुआ गिरफ्तार रैपर्स को टोपा पिनाने का संस्कार बंद कर सीधा साउंड कम कर मैंने जो भी किया छोटे किया खुद के दम पर पंचर फटेले टायर कटेले वायर तू दिले नायर तो मैं फक का फायर पूरा रंग का फायर बहुत हार्ड हूँ मैं आग हूँ मैं ऑर्गेनिक बंदा हूँ झाड़ू मैं बहुत हार्ड क्या बहुत हार्ड क्या अगला गाना अपना बहुत हार्ड आ रहा है ठीक है अपन डिस्मिस में नहीं अटके रहते अपन सच्चाई बताने में बिजी है अगले शूट पे चलती पब्लिक नाचो चले बोले हार्ड है भाई बहुत हार्ड क्या No matter what people say, Giraftar has to be one of my favorite tracks from The Beef. This is the second track of Emiway from The Beef, and Emiway always comes out the strongest in his second songs. It's like once he's warmed up, he fully locks in. Emiway did exactly what he's good at and he did not miss. And I know people troll him for the lines like Khulela Nala Tutela Tala, but let's be honest, these petty insults are what makes the song entertaining. You have to give it to him. Emiway is a solid entertainer. He kept the whole top dog versus the underdog energy constant in the song, which worked out to be in his favor. And the line "Paise ko khayega kya?" it still hits hard. With that, we move on to the next song of The Beef, that is Ewe Hai. तेजी में गाता रफ्तार उसे सुन के हुआ मैं तैयार चल बोल कभी तू कहता है मैं हिप हॉप नहीं कभी तू कहता है मैं सिर्फ रफ्तार को सुनता हूँ कमाल है इस बार इस शोर नहीं सिर्फ बार्स 2009 से मैं अंडरग्राउंड सोल्जर खासियत मेरी तेरी हाथों में तू खोल कर पारी पे विराट हूँ मैं बेटा जरा बॉल कर बातें कर लॉजिकल मुझको ना बोर कर तूने तेरे गाने में बोला मैं तेरा द्रोणा बोला मेरे जैसा ही तू करता है फ्लो ना चाबी वाला बंदर ताली मारे वो खिलौना मैं खुद भी ना लंबा तू मुझसे भी बोना कैसे करेगा तू बेटा मेरा सामना मेरे बिना इतना होता तेरा नाम ना वो भी जाने अब जो भी ना था जानता चल बेटा जरा चिट्ठा खोले तेरे काम का छोटी छोटी चड्डी माल वाली आंटियों के पीछे तू और घंटी वाला मिश्रा कुछ भी ना खास इतिहास बकवास तेरा खुद से ना धोता था तू तब से मैं घिस रहा बेटा रा इस फील्ड में तो हम ही तेरे पा बेटा सोया हुआ शेर ना जगा गा ओ बंदर टपुसिया ना खा मैंने अभी भी निशाना नहीं दागा मेरा कुछ भी ना करेगा तू बाका मुझे इल्म है अपनी जगह का मेरा पूरा जंगल तेरा है इलाका लगे मैं हूँ रागा मिली राहत तुझे मैंने बड़ा किया पूरी हुई चाहत बॉडी और बोली में तेरे से ज्यादा ताकत लिखता हूँ गाने में तो चलते हैं कागज बंटाई की पब्लिक को ठंडाई पिलाओ बंटाई बड़ा हुआ मिठाई खिलाओ मैच म्यूजिक बाजी से किसने मिलवाया था वेलकम छोटे तुम भी लेवल पे आओ अंडरग्राउंड लेके आया मेन स्ट्रीम में इंडिया को बांटा तेरी मेरी टीम में
एक दिन में 2 मिल तू फील ले, मेरे बिना होता ना ये पूरा तेरा ड्रीम। मैंने कितना हिप हॉप किया है देख गूगल पे डाल के। तू पीपल्स चॉइस अवार्ड है ना, मैं दादा साहिब फाल्के। ये पैसा मत कर, मेरी मार्केट वैल्यू पता कर बेटा, देना तेरे बस की नहीं। तू खुद किसी की कॉपी है एनीमे, तेरी खुद की कोई हस्ती नहीं, माल नकली तू। So initially that was the title of the song, but Raftaar had to change it since it was not reaching to the people. तू खुद किसी की कॉपी है, तेरी खुद की कोई हस्ती नहीं, माल नकली तू कश जो भी भरता है, 20 गानों में से 10 कॉपी करता है। हम जाने की तू कब कॉपी करता है, अंग्रेजी रैपर रस कॉपी करता है। उसकी तरह करी चाल तूने बाल तूने, वो है असली तू नकली का कार्टून है। शुरू खुद ही किया सारा बवाल तूने, बात कर सकते थे आगे किया गाल तूने। मैंने तुझे दिल्ली ना बुलाया, तू घर मुंह फाड़ के था आया, उसने ही तेरा साइफर कराया और तूने बोला मैंने तुझे टोपा पहनाया। मेरी टोपी तेरे सर, तेरी टोपी मेरे सर, कैप तेरी पहनी थी मैंने मेरे सर पर। वीडियो में प्रूफ है तू झूठ बोले डर कर, सब मैं दिखा दूंगा हल्की सबर कर। तुझे सच लगे बड़ बड़, तुझे होने लगी हड़बड़। तू बोले कि तू झाड़ है कंजर, होगा बंजर तू भी झड़ कर। झाड़ फूक हम पे मंत्र नहीं चलते, तुम वो गधे जिनको हंटर नहीं लगते। चौपर विमान ज्यादा अंतर नहीं रखते, मैं रॉकेट हूँ बेटा हम पे पंचर नहीं लगते। करूँ टेक ऑफ मैं, इसके बाद मुन्ना लगूंगा तू फेक बहुत है। जब काम होते हैं तू होता चेप बहुत है, तू 10 मार मेरा बेटा एक बहुत है। या मैंने थप्पड़ निकाला था 2013 में, सबको हिला डाला। मैं दंगल में आया था, शोहरत कमाई और औरत बिगा डाला। मैं था कोक स्टूडियो पे, टी पेन वीडियो में, तुझसे पहले रेडियो पे। चलू तेरे एरियो में बेटा, शेर हूँ चमकता हूँ बीच भीड़ियों के। ये छोटी वाले लेडी बॉय देंगे टेढ़ी होके, इतना आता ना तू ऊपर बिना मेरी सीढ़ियों के। इसे कहते हैं पे बैक, हो जाए इजी आजा चीजें करूँ laid back। Anyway, heavy man, any day, bro तू funny है, तू heavy है, anyway, heavy man, any day, bro तू funny है, तू heavy है, छोटी सी खोटी सी नीयत है गंदी, समझ में कमी है अक्ल है मंदी। थ्रो तेरा फायर है बातें है ठंडी, एक चिल्लाता तू और चिल्लाती है। मुझसे बेड़ा है तू चिंता पकड़, फिर भी करूँ तेरी चिंता मगर। तू पागल है पगले, मैं पगलों का डॉक्टर, जब काटूं मैं धड़ से तो गिनता ना सर। तू क्या बोलता है यार कि रैपर डांस नहीं कर सकता? अबे टूपाक ट्रेंड बैले डांसर था, पीडीडी बैकग्राउंड डांसर, और कॉमन ना बहुत बड़ा बी बॉय है। तेरी पुरानी वीडियोस देखी है मैंने, बहुत कोशिश करी है तूने उसमें डांस करने की, फिर बात पलट रहा है। रियल रह, तू इंग्लिश भी गाया तू नाचा भी ब्रो, मेरे जितना बड़ा तेरा ढांचा नहीं ब्रो। मैं खानदानी ब्रो, झूठा खाता नहीं ब्रो, तेरी बातें सुनूं मैं तू राजा नहीं ब्रो। और हैशटैग सड़क वाली स्टोरी, तू बोला लाइनें हुई तेरी चोरी, बाजी मैं फिर लिख के गा दूंगा, वीडियो बना दूंगा, बातें हमारी थी हो रही। हैशटैग सड़क इसलिए नहीं आया क्योंकि कभी मैं बिजी कभी तू। प्रूफ में स्क्रीनशॉट डाल सकता हूँ पर नहीं जिसको जिस पे यकीन करना है करे। मैं मौके भी दिलाता हूँ और धोखे भी खाता हूँ, एक दो पेटी नहीं बेटा एक डील का खोके में खाता हूँ। खूब तरक्की करो और ये नई जनता मुबारक हो। The best part of the track was Raftaar bringing up the moment Emiway was fanboying over him. It gave those Eminem versus the MKG vibes when your idol becomes your rival. Raftaar clearly pointed out how Emiway is just gaining numbers by dissing him, and he also took jabs at Emiway trying to dance while bringing out his accolades. He even called out Emiway for copying Russ, and honestly that hit hard. So what went wrong? Well, the title of the track. I guess Raftaar could have picked up a better title for the track, and this really cost him. I generally don't find myself going back to this track and replaying it as much as I would to the other tracks of the beef. With that said, we move on to the next song and the final one, that is Khatam. ये खत्म नहीं हुआ ए व्हाट अप क्या बोलते सब लोग? एमिवे बनता है मालूम है ना? नहीं मालूम है तो सुन। क्या बोला तू? एमिवे का सीन चेंज कर दूंगा? भगवान है क्या बे? मैंने जो भी किया ना खुद से किया है। और क्या बोलता मैं रस कॉपी करता हूँ? अबे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ इन सब लोगों से, एमिनेम, रस, सब आर्टिस्ट को देखता हूँ। तेरे ऐसे नल्ले पाव को देख के नहीं सीखता हूँ मैं। और बोलता है रफ्तार को पहले सुनता था। अबे लाइन समझ मेरी जान, 2014 में तेरे को डिस कर दिया था मैं, क्योंकि तू बहुत नकली बन रहा था तभी से। सुन, मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा। जिस तेरा फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा? मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा? तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जैसे को तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सच्चाई है, ऊपर से शब्दों का चाहता है।
बंद किताब हो आज भी राज में बेइज्जती करूं मैं तेरी वो भी एक सांस मेरे लाला मैंने डाला तू निकाला मेरे वजह से तेरे पे गिरेला है ये उजाला मारा ताला मेरा छोटू मोटू बीबी बाबा बाला में उज्वाला मैंने गोदी में रफ्तार उछाला कैसाला में भिड़ाला एक टच साला अकेला मैंने पूरा सीन बना डाला तेरे जैसे चले को सेंग ना डाला हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला रफ्तार के बंटाई ने हेड भगा डाला हिप हॉप में आ रहा था भग भगा डाला रफ्तार के बंटाई ने हेड भगा डाला हिप हॉप में आ रहा था भग मैं मोबाइल का जमाना और तू पेजर है तू नल्ला पाव घंटा है बहुत डेंजर है तूने बोला तूने मेरा काम बनाया ये बता क्या रफ्तार मेरा मैनेजर है तूने मुझे मैच म्यूजिक से मिलाया पर वजह बेटा कुछ और था भरोसा नहीं होता तो छोटे पाजी से पूछ ले पैक गाना उनका सामने से कॉल था लेबल से आ रहा मेरा गाना तेरी जली जली खुश हूँ मैं तुझे देख के करूँ मैं खली बली आगे चला गया मैं तू खड़ा वही जनता भी जानती है रफ्तार अब सही नहीं तेरे पास कुछ बोलने को है ही नहीं तो मेरे करियर का स्ट्रगल दिखा रहा है कल वहाँ था आज देख मैं कहाँ पर हूँ एमीवे हर जगह छा रहा है हाँ पहले नहीं होते थे पैसे हाँ पैदा नहीं हुआ था मैं रैपर हाँ सब कुछ मैं सीखता हुआ आया आज भी मैं सीख ही रहा हूँ यहाँ पर पहले एक साल में आते थे 100 व्यूज आज एक दिन में 2 मिलियन पार है तू तो अश्लील गाने बनाता था कॉन्डम और गड़बड़ अब क्या विचार है ओके में कमाता भाई तू लेकिन मैं क्या करूँगा पता है मैं चिल्लर उठा के पिल्लर बना दूंगा हर एक गाना मेरा किल्लर बना दूंगा ज्यादा जलूंगा तो खुद को जला दूंगा कंपटीशन ना कर फट से हरा दूंगा मैं फट से हरा दूंगा सुन तेजी में गाता रफ्तार उसे सुनने के हुआ मैं तैयार अंग्रेजी में तेजी से अब गाऊं अब सबको सुनाओ देख मेरी रफ्तार लाइन सुन बेटा ध्यान से जो भी अकेला निकाल बेटा कान से मैंने कहा तुझे सुन के मैं हुआ तैयार ये बताने रफ्तार में तेज हूँ तूफान से क्या मांगल्यम तंदुना लेना भव जीवन दे दूना रैपिंग में जो भी आड़े फटाफट के मैं दे दूना नया गाना लिखे आया हूँ मैं लिसन खाना खाए बिना खाता मैं मेडिसिन मेरे रास्ते के बीच में जो अड़चन बने तो फिर कल के न्यूज़पेपर में मिसन वाली खबर छपेगी तेरी सारी चीजें मेरे गाने सुन के लोग बोलेंगे कुछ तो सीखो मुझसे क्या मतलब है तेरा इखलाफे पे सीधा बहरा फट जब पड़ेगी तेरी फट के हाथ में बिना बोले कुछ तुझे करूँ बर्बाद में बाद में साथ में तुझको बिठा के जो भी गिला शिकवा है उसको मिटा के हटा के तेरे कानों के पर्दों पे चीकू मैं Well, this was my least favorite track from The Beef. Honestly, there's nothing much to talk about in here. Anyway, could have just posted a story on Instagram to clear things up. I really don't feel like there was a need for a full 4-minute diss track. In Giraftar, Anyway said that he wouldn't drop another diss, and then he did exactly that. That sort of hurts his credibility a bit. Also, the part where Anyway said that he didn't really have money back then. Well, Raftar said the same thing in his track, and I feel like there was nothing new being added to the conversation. All I'm saying is the track was unnecessary. It was a low effort and it was avoidable. Anyway, could have done a lot better. The only part I actually liked in the track was the line "Chiller uthakar pillar bana dunga," and that's all. And with that, the beef officially came to an end. So after the beef, it's quite clear that Anyway gained the most in terms of audience, number, money, love, and yes, hate too. But honestly, I really admire how Anyway navigated through all of this hate and still made it to his peak. We all know that not everyone here makes it out of the beef like Anyway did. And even today, he's still hungry to be number one. The way he continues to drop track after track shows how much he respects his craft. And the fact that he listens to his audience and continues to evolve even today shows that he's not just here for a moment, but he is here to stay in the game for a long term. As for Raftar, I wouldn't say he lost much either. A solid save came for him in the form of Rohan, Krishna, and an Instagram live with Mufad.
If I had to rate the tracks from this beef, here's how I would rank them. At number 5, Khatam. At number 4, Samajh Mein Aaya Kya. At number 3, it would be Aime Hi Hai. At number 2, it would be Sheikh Chilli. And at number 1, it would be Giraftar. Let me know how you guys would rate these tracks from the beef. And also let me know if I should cover Anyway vs Divine in the next video. Until next time, peace out.